सो क्या आई होप कि लॉज ऑफ मोशन की आपकी असाइनमेंट में जो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस थे, बट ऐसा है कि असाइनमेंट के डाउट्स तो उसमें जो आपको असाइनमेंट मिली हुई है बेसिकली उसमें 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं। लॉज ऑफ मोशन के भी हैं, फ्रिक्शन के भी हैं और लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन के भी हैं। तो इनफैक्ट अभी हमने सिर्फ एक पार्ट किया उसमें से, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी आज हम फ्रिक्शन वाला पार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, वो वाले कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। सो मैं डाउट्स तभी ले पाऊंगा कि जब वो सारी असाइनमेंट के टॉपिक्स एक बार कवर हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके फ्रिक्शन रिलेटेड या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिलेटेड होंगे, इंपल्स से रिलेटेड होंगे। तो वो हमने इनफैक्ट अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो एक बार जब पूरी हो जाएगा, बिकॉज फॉर मी दीज आर 3 डिफरेंट टॉपिक्स बट योर असाइनमेंट बेसिकली इज कंपोजिंग ऑफ ऑल द 3, वो इकट्ठी बनी हुई है। तो इसलिए आप डाउट्स तभी लेंगे जब तीनों टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे हमारे पास, एंड प्रोबेबली फिर शायद आपके डाउट्स बहुत कम रह जाएंगे। सो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सो वी शैल नाउ बी लर्निंग अबाउट हाँ जी, ब्राइट कर दो। सो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स टुडे which is called friction. Now friction was mostly responsible for Aristotle's fallacy, if you remember. Aristotle assumed that motion produce करने के लिए force चाहिए, जो हम laws of motion में discuss कर चुके हैं। Now हमने weight, normal reaction, tension, contact force, these are the forces which we are already familiar with, and all these were, except weight, normal reaction, tension, these were electromagnetic forces. So the nature of the frictional forces is also electromagnetic. So it will be electromagnetic in nature. So electromagnetic forces जो है like normal reaction, it will be produced when the two bodies are in physical contact with each other. Now first few things about the force of friction. It has 2 major properties. One is it is automatic force and other is it is self-adjusting. So let us first understand what do I mean by when I say friction is automatic and self-adjusting. देखिए, suppose I have some block of mass m placed on a horizontal surface. So if I'll try to move this block, it will resist its motion because of 2 factors. One, of course, is inertia, which we have studied in the previous discussion of laws of motion. It will resist any change in its state. And the second is the friction between the block and the surface. Frictional force कब लगती है? It automatically comes into action whenever there is even a tendency of relative motion between 2 surfaces in contact. Until unless there is a tendency of relative motion or actually the relative motion is there, तब तक आपकी force of friction नहीं काम करेगी. But as soon as there is a tendency of relative motion, I call this as surface 1 and इसका जो bottom surface है उसको बोल लेते हैं हम
सरफेस 2। आपका सरफेस की बजाय इसके नीचे कोई और बॉडी भी हो सकती है, विल गो टू दोज केसेस अ लिटिल लेटर। Now, if it has a tendency of motion, it means I must be applying some force Fa in a certain direction, whether in this direction or positive x-axis direction. So, because of this force, this block will have a tendency to move on this surface. And once I am saying tendency, it might start to move actually, but लेकिन अगर मेरे पास ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है, इवन देन फोर्स तो लग रही है लेकिन इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो वेन एवर देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन और देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट टू बी इनवाइटेड, इट कम्स इनटू एक्शन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाती है और करती क्या है, देन व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी totally wrong to say that friction opposes motion. We'll see in certain examples actually friction would be responsible for the motion, and it opposes the relative motion. So this gives me a clue to decide about the direction in which the force of friction will act. It does not act on a single body, it will act on the two bodies in contact. One will apply the force on other and then the second will apply the force on the first, like your action reaction pair of forces. How to decide the direction of friction? पहले तो लॉजिकली भी बात कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो मास m है, इसको मूव करने के लिए मुझे 5 न्यूटन की फोर्स चाहिए। If I apply an applied force of 1 Newton, what happens? The body does not move. But then, अगर ये मूव नहीं कर रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि if you have an unbalanced force in a certain direction, the body must move in that direction or accelerate in that direction. So, अगर मेरे फोर्स लगाने पे भी ये मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हो गया, बिकॉज अब मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं तो आई कैन नॉट डाउट द न्यूटन्स लॉज। सो इट मीन्स इफ इट इज नॉट मूविंग, देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज बैलेंसिंग माई फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इन फैक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो बिकॉज मेरी अप्लाइड फोर्स इधर को है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। Later on we'll see that it actually acts along the tangent between the two surfaces. It's a tangential force, but I can show this force to be acting on this body. आपने रिलेटिव मोशन कब देखना है? जब तक तो आपकी बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है, तो यूर ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम द ग्राउंड, तो मुझे कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी या उसके ऊपर कोई तीसरी बॉडी पड़ी होगी, देन टू सी द रिलेटिव मोशन आई हैव टू जंप टू द बॉडीज फ्रेम। जिस बॉडी में देखनी है उसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये मान लूं कि दिस इज अनदर बॉडी हियर, लार्ज बॉडी, अगर आपने, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, आप इसके फ्रेम से देखेंगे कि इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर को है। जब आपने इस पे देखनी है, दिस इज बेसिकली, आई कैन राइट इट एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2। क्यों? मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, अच्छा सॉरी 2 ऊपर वाली है, so it will be 2 1. Now how have I decided it?
पहला तो अगर मैं इसको ग्राउंड मानता था तो ग्राउंड के लिए मेरी अगर मोशन की टेंडेंसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर ये मेरे लिए एक बॉडी होती नीचे तो हम बॉडी में बैठ के देखते कि ये इस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू किधर को टेंडेंसी है इसकी मूव करने की, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होगी। तो अगर यहां पे इसकी टेंडेंसी इधर को है तो मैं इसमें बैठ के फोर्स इधर पे लगाऊंगा एंड देन ऑटोमेटिकली इसकी अगर डायरेक्शन मुझे पता चल गई है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। एक्शन सर। हाँ जी सर वैसे तो सर सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन जो आप सर जो 1 2 या छोटे अक्षर डाल रहे हो ये नहीं बिल्कुल दिख रहे। ओके, मैं इनका भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूंगा बेटा। हाँ जी, मुझे ये नहीं समझ आया कि हम वो उधर को फोर्स क्यों लगाएंगे। आप किसी भी तरफ लगाओ, वो लग रही है, आपने नहीं लगाई, वो आपको गिवन है कि फोर्स इधर को लगी हुई है। आपने चलाने की कोशिश करनी है, फ्रिक्शन तब लगेगी। आप बैठे हुए बुक सामने टेबल पे रख के क्यों लगेगी फ्रिक्शन? जब टेंडेंसी पैदा करोगे, टेंडेंसी कैसे पैदा करोगे? जब किसी चीज को चलाओगे तो चलाने के लिए तो की चीज रेस्ट पे है तो उसको चलाने के लिए फोर्स तो लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन तो तभी लगेगी जब वो उसकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अब क्रिएट कर दी मैंने, अभी बॉडी चली नहीं है, इसका मतलब जितनी मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहे वो 1 on 2 है चाहे 2 on 1 है, वो भी 1 न्यूटन होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ज्यादा? क्योंकि अगर ज्यादा होती तो बॉडी इधर को ना चल पड़ती। मैंने इसको 2 न्यूटन किया, ये 2 न्यूटन हो गई, 3 न्यूटन किया, 3 न्यूटन हो गई, 4 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन हो गई। डोंट यू सी दिस इज एडजस्टिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। सो दैट एक्सप्लेन्स द सेकेंड पॉइंट। ऑटोमेटिक मीन्स मैं बुलाने नहीं गया था इसको, अपने आप ही अपोज करने के लिए आ गई है। सेल्फ एडजस्टिंग किस तरह है? मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाई जा रहा हूं, ये अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाई जा रही है, ना उससे ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मूविंग। लेकिन 5 न्यूटन पे मैं जाके देखता हूं कि ये चल पड़ती है। इसका मतलब अगर मेरी अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन हो गई तो इसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब नहीं मैं रोक सकती। So that will give you the maximum force of friction. तब भी फ्रिक्शनल फोर्स तो 5 न्यूटन लगेगी, 5 न्यूटन तो लगेगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लग सकती। And once the body starts moving at a force of 5 Newton, then we'll see that the force of friction जो है वो कम हो जाती है, 5 न्यूटन से कम हो जाएगी। दिस इज एफ मैक्स। सो देन बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग। सो ऑटोमेटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, पैदा कब होती है? जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट हो, और पैदा होने के बाद क्या करती है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। इसको इस तरह भी देख सकते थे, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे पहुंच गया, वही कार वाला आ गया, मुझे सड़क पीछे को जाती दिखाई देगी। मेरे लिए इसमें बैठ के देखूंगा तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? इसमें बैठ के देखूंगा ये बॉडी मुझे पीछे को जाती हुई नजर आएगी। सो जब भी आपने एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखनी है तो एक बॉडी में जाके बैठ जाइए, दूसरी बॉडी के मोशन को उस बॉडी से ऑब्जर्व कीजिए एंड देन यू डिसाइड इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ आई हैव दिस एग्जांपल। नाउ दिस गिव्स मी समथिंग टू draw a graph between the applied force and the force of friction. So
Have you missed something at Gumarvi? Okay. So, force of friction and applied force. Now from these values it is very easy for me to draw the graph because direct proportionality aa rahi hai till a certain value, at least I am getting a direct proportionality, and that means the graph will be starting from origin and it will be a straight line till 5 newtons or till some maximum force. So in this region the force of friction linearly rises with the applied force. Now at this point अभी तक बॉडी चली नहीं थी, 5 न्यूटन से पहले तो नहीं चली थी वो. So it means in this region body remains stationary or static. So these values of the force of friction which we have written on the board, these values are the different values of the static friction क्योंकि बॉडी अभी स्टेशनरी है. And then we get the limiting value of static friction. Limiting means इससे maximum नहीं हो सकती. This is the limit. So after that what happens, that once I achieve the limiting value of the static friction, I'll be writing it as Fs. This is the limiting value of the static friction. Or let us see if I can change the symbol, because my forces, applied forces, I normally draw them or write them as capitals. So force of friction will be written by the small f. So Fs means the force of static friction having its maximum value. Sometimes we also call it as limiting friction, but it is now quite normal to call it as static friction also. कुछ आपकी बुक्स में इनको static friction ही बोला जाता है. हालांकि static friction आप कंफ्यूज मत होइए, because static friction does not have one value. But जब मैं Fs लिखूंगा, this will represent the limiting value of the static friction. And once the body starts moving and we are in the normal range of velocities, then we'll see कि आपका जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है. एंड दिस पार्ट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड आई राइट इट एज एफ स्मॉल के. कम होना है वैल्यू ने, एकदम से नहीं गिरेगी. आपकी बॉडी की एक थोड़ी सी स्पीड अचीव होगी, अभी चलना शुरू करेगी, और जब एक कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेगी तब तक वो चलती रहेगी. जब कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी उसके बाद फिर आपकी फ्रिक्शनल की वैल्यू भी कम होती जाएगी. सो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहां से सीधा शो करके ऐसे कर दूं, इसका मतलब जैसे ही बॉडी चलने लगी फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम से गिरी और फिर उतनी ही रही. सो वो धीरे धीरे कम होती है. मान लीजिए कि यहां पे आके ये 4.5 न्यूटन हो गई, तो 5 से लेके 4.5 न्यूटन तक थोड़ा थोड़ा तो उसको लेना. उसके बाद अप्लाइड फोर्स उसको सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने की कोशिश कर रही है. सो दैट इज हाउ द फ्रिक्शन वेरीज. So now we have static friction, the limiting value of static friction, and kinetic friction when the bodies are actually moving. Now, few things about the computation of. I have told you one property already, that the force of friction being contact force, so it will be acting along the common tangent to the two surfaces. Perhaps I won't need this fact in the problems. And one more thing, मैंने अभी अभी आपको जो देखा है कि जो force of friction है F, it is found to be proportional to the normal reaction. Now this can be very easily understood. You can do some activity. Force of friction जो है वो normal reaction पे depend करती है या नहीं करती है. Suppose I have a book here. कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, आप इसको टेबल पे रखिए और इसको मूव करने की कोशिश कीजिए.
शुड आई पिक इट अप? चलिए मैं हाथ में पकड़ लेता हूं और इसको मैंने मूव करने की कोशिश की, हो रही है मूव, ठीक है। ये जो सरफेस मेरे हाथ के साथ टच हो रहा है, फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ सरफेसेस। एक चीज मैं बता चुका हूं कि इट एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस, और दूसरी बात जो है कि फ्रिक्शन जो है जिन सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होती है, नॉर्मली वी कॉल दो सरफेसेस एज रफ सरफेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, and if the friction is absent between the two surfaces, they are called smooth surfaces. We'll talk about the super smooth surfaces also later on. Now you see, if I now press it from above and I ask someone to push it, probably मेरे हाथ के ऊपर उसको स्लाइड नहीं कर पाएगा। इसको दबाने से हुआ क्या है? ये बुक का कोई वेट नहीं बढ़ा है। सरफेसेस जो मेरा हाथ और बुक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो नेचर पे डिपेंड कर रही थी, नेचर दोनों सरफेसेस की वही रही। जब मैंने इसको दबा लिया तो ये नहीं मूव कर पा रहे हो आप, और जो मैं लगा रहा हूं उसके अपोजिशन में तो फ्रिक्शन लग रही है। दबाने से मैंने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया है। मैंने बुक को ज्यादा जोर से नीचे को पुश किया तो हाथ जो मेरा है वो ऊपर को ज्यादा पुश करेगा। तो इट मींस व्हेन आई एम पुशिंग इट फ्रॉम अबव, व्हाट आई एम इंक्रीजिंग इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड वी सी नाउ दैट आई नीड ए लार्जर फोर्स टू मूव इट। इफ आई नीड ए लार्जर फोर्स टू मूव इट, इट मींस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज इंक्रीज्ड. So it means the force of friction is proportional to the normal reaction of the body. You can explain some common phenomena like this, like आपका spring door होता है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करो, उसके नीचे एक ब्रिक रख लीजिए, से 5 kg की एक ब्रिक रख दी, तो आप देखोगे वो उस ब्रिक को भी साथ में लेके बंद हो जाता है, if the spring is good enough. Then what do you do sometimes कि जो आपका डोर और फ्लोर के बीच की जगह होती है, उसमें आप कुछ एक पेपर का कुछ बना के, हिंज बना के, या आप कोई लकड़ी की बना के नीचे फंसा देते हो. एंड डजंट इट बॉदर यू कि ए 5 kg ब्रिक couldn't stop the door and a 10 gram piece of wood is able to stop the door? It is the same door. Even if you choose 5 kg of the same wood just to get the two surfaces of the similar kind. अगर मैं 5 kg का ब्लॉक वुड का रखता हूं दरवाजे के आगे, उसको तो दरवाजा उससे तो दरवाजा रुकता नहीं है. और दरवाजे और फर्श के बीच में, ये दरवाजा है, ये फर्श है, इसके बीच में कुछ फंसा देता हूं उसी लकड़ी का छोटा सा पीस, बिकॉज द सर्फेसेज आर सेम, तो मैं सर्फेसेज की जो डिपेंडेंस है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे वो खत्म कर दे. सेम सर्फेसेज हैं. So what happens is that when you push something under the door, डोर को वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, डोर उसको नीचे को दबाता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वुड और फर्श के बीच का बढ़ जाता है. And normal reaction increases to such a value that it is more than the normal reaction given to a 5 kg block of wood by the floor. So normal reaction बढ़ने से दरवाजा जो है वो रुक जाता है. So you see, force of friction actually is proportional to the normal reaction. More is the normal reaction between the two surfaces in contact, more will be the force of friction. So this is called the law of static friction. And here if I insert the constant of proportionality, that is mu Sn. Here mu S is called coefficient of static friction. So this dependence is quite obvious from the examples. So I shall be using this equation many a times in the chapter. And if the body is moving on the surface, then I will just replace, this is Fs, F kinetic will be mu kinetic N. So this is my kinetic force of friction and static force of friction. So I just need to evaluate N in different cases. Good morning ji.
So if I am able to evaluate the normal reaction in different cases, I shall be able to find the force of friction between the two surfaces, provided I am given the coefficient of static friction. For example, if I have a block placed on the surface and its weight is mg acting downwards, normal reaction upwards, there is no motion along the y-axis, so in this case n is equal to mg, so hence the Fs will be equal to mu s into mg. Okay, if I have an inclined plane here and body is resting on it, it's not moving, then you see mg is in this direction, this is mg cos theta, this is mg sin theta. In this case, I don't even have to apply some force to make the tendency to move. Mg sin theta is already producing the tendency of motion, so force of friction will be in this direction. Okay, so n here is equal to mg cos theta, and the limiting force of static friction will be equal to mu s mg cos theta. Now, I can have a situation in which I have one body, this is another body. Okay, if I give you, say, the value of mu s here, for example, the value of mu s here is, say, 0.5, m is 10 kg. Can you tell me what is the amount of friction acting on mass m in this diagram? Sir, 50 newtons. Pathankot? Sir, 50 newtons. 50 न्यूटन्स. हाँ जी, कितने 50 न्यूटन्स? जी की वैल्यू आपने 10 एज्यूम कर ली है? Yes, sir. Yes. Okay. The answer is wrong. I know this confusion is always there in your mind. If I would have given you 4 options, you would have scored negative -1 in it. इस situation में, is there any tendency of motion? Have I applied any applied force in certain direction? No. Then? Cos Sir, what is the force of static friction? मैंने क्या पूछा है? रिवाइंड कीजिए मेरी वर्डिंग को. What is the force of friction acting on mass m in the given diagram? And I have not shown any applied force on the body. Why would the friction act? That is why I am saying Fs को confuse मत कीजिए. This is the maximum value of the static friction. It does not mean that friction will always be acting. अगर इस सिचुएशन में फ्रिक्शन एक्ट करती, आप मुझे बताइए करती किधर को? डायरेक्शन क्या लोगे उसकी? और अगर उस डायरेक्शन में करेगी तो बॉडी तो पड़ी पड़ी बाहर जानी चाहिए अपनी मर्जी से. So here in this diagram